Namaskar. Can you please unmute yourself, sir? Yeah. Yeah. Good afternoon, everyone. Madam, Afternoon. as you said, half of my question was answered in the previous question. It was that the legality, okay, of the practice and the challenge of the report with government regulation authority. Yes. So if you find there is a various difference, this point I think we should cover in a detail point coming across. Which point exactly, sir? Can you re-ask me how we can? When we yeah, the valuation difference between a valuer and the valuation that the government authority while registering one particular property, okay, they view that property. Rules which have been described. If I take in Maharashtra, is a IGR makes a standard valuation format they have given. Even though if you evaluate that property in the same format, still they increase the stamp duty. They don't count that valuation. They say no, it is wrong. That is what my latest experience in one of the properties for Solapur was. So how we can have a little clarity on this? We'll discuss why it works the way in which it works. Okay, and that will give you a lot of answers. So, okay. Yeah. So everybody understood the question that sir was asking. It's a very valid question. The question Nilesh sir is asking is, आपके यहाँ पे भी wherever you are, you might see, हम लोग जब भी किसी प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, we go to the sub registrar's office to register that document, right? And when we go there, वो लोग हमको क्या बोलते हैं? स्टैम्प ड्यूटी भरो. और स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होता है? बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज एक्सचेंजिंग हैंड्स. बराबर है. अब इस स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए जो वैल्यूएशन का उनका प्रोसेस है सब रजिस्ट्रार का, दे फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस versus which when you and I do actual valuations on the field, the values that we come up with, even if we follow the same process, may be different. And that's what sir is asking. तो उसमें कई बार होता है कि यार मेरे को दिख रहा है ऑन द फील्ड, अगर मैं एक एग्जांपल किसी फ्लैट के मकान का अगर कोई वैल्यूएशन करूं, हो सकता है मेरे हिसाब से द वैल्यू विल कम ओनली 1 करोड़. बट जो सब रजिस्ट्रार का जो भी उसका फॉर्मेट है, वो जहां से उसका रेकनर वैल्यू उठा रहा है, जो भी हो रहा है, वो ही इज कमिंग अप विद द वैल्यू ऑफ 1.5 करोड़. मैं बोल रही हूँ सर वहां पे 1 करोड़ का ही एंड मैं साइन करके दे रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. बट जब आप वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे, वो जब स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू निकालेगा, वो उसका जो मेथोडोलॉजी है उसी से निकालेगा. एंड नीलेश सर, टू आंसर योर क्वेश्चन, यू कैन नॉट चैलेंज हिज stamp duty value because each value has a different meaning and purpose in different departments. Stamp duty value ka purpose is from revenue point of view for the government to collect taxes. Income tax में जब वही आपका उसी मकान का valuation जाएगा, it is about income that you have earned and the income that you have spent. वही जब आप वीजा के लिए जाते हो, फ्लैट वही है, मकान वही है, वीजा वाले को क्या देखना है कि भैया तू देश छोड़ के भाग रही है कि तेरा कुछ है यहाँ पे जिसके लिए तू वापस भी आएगी. या यार अगर मैं जैसे इंडियन बच्चे को अगर कोई यूएस में ले भी रहा है, तो भैया वो यूएस में आके हमारे ऊपर बोझा बनने वाला है कि उसके माँ बाप है पीछे जो उसको खाने पीने का पैसा भिजवा सकते हैं, वो बच्चे को वापस लेके जा सकते हैं, उतनी औकात है उनकी. दैट इज द पर्पस ऑफ वीजा वैल्यू. सो यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. मकान वही है. अगर कल बैंक में लोन लेने को जा रही हूं मैं और अगर मॉर्गेज रख रही हूँ, मकान वही है, बट द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन हैज चेंज्ड. द वे ऑफ लुकिंग एट द वैल्यू इज डिफरेंट. ऑलराइट. So that was a brief answer for you. But having said that, guys, please remember, जो आपका स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू वो लोग निकालते हैं, कभी भी पानी में रह के मगरमच्छ से लड़ने का नहीं. ओके. अगर सब रजिस्ट्रार बोलता है वैल्यू इतना है, मेरे बाप उतना ही है, मेरे को तेरे से लड़ने का नहीं. एंड अगर आपको फिर भी कोई पूछता है कि अरे नहीं पूछा, लेकिन वहां का वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाल के दे, अपने हिसाब से वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालो, उसमें लिखो इट इज एज पर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द करंट गिवन कंडीशंस इन द मार्केट, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई इट इज नॉट 1.5 करोड़ एंड व्हाई इट इज 1 करोड़. दैट इज वेयर योर जस्टिफिकेशन विल कम. बट वो रिपोर्ट का आगे उसको क्या करना है आपका लेना देना नहीं है.
ओके, बट यू शुड बी एबल टू डिफेंड, बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन मैंने खुद वैल्यूएशंस दिया है जहां पे गवर्नमेंट रेट के हिसाब से वो लैंड का वैल्यूएशन वाज कमिंग टू बी 5.5 करोड़ and I have given a valuation report of around 2.5 crores. Okay, and I can justify that valuation of mine, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो लड़ने को जाने का जो काम है वो मेरा नहीं है, वो सीए को मैं रिपोर्ट दे देती हूँ, भैया सीए तू जाने, कंपनी सेक्रेटरी जाने और गवर्नमेंट जाने. कल आप मेरे को मेरा रिपोर्ट डिफेंड करने को बोलो, मैं आके डिफेंड करूंगी. बट किसी को ये मत बोलना मेरा रिपोर्ट लेके जा फिर देख तेरा कैसा स्टैम्प ड्यूटी कम आता है, भैया मेरे को नहीं पता क्या आता है. ओके, सो नेवर प्ले दैट गेम.